So I will share my screen now. Yeah, is it visible now? Mhm. Yeah. Yes, yes. Okay. So this was the tree which we are trying to solve using the triple S star. So first, we do the minimax, so we know what is the solution which we have to find, and then we do the forward pass. So forward pass, okay, we find the terminal nodes as solved. Okay, like for example, in this case, we have found A21 solved, C15 solved, I5 solved, and K13 solved. So they are in a priority queue. Priority queue means it is always sorted. So it has always got the best, okay, in the first. So we pop out the first node from the priority queue. So in this case, it will be A21. A21 solved. So the algo says that if the pop node is solved, then there can be three conditions. It can be a max node and not the first child, not the last child of its parent. Second condition, it can be the max node and the last child of its parent node. Or the third condition is it can be a min node. So if it is a max node and it is not the last child of its parent, then add the next child of its parent with the same value and as live. Is it understood this statement which I made? Yes, yes. Shrabna? Yeah, yeah. The last sentence you have said, I probably missed it. Okay. Firstly, it's either the max node or the last first node. Secondly, the max node or the last node, and thirdly, the I mean, Min node. the min Min node. node. Min node. So So there are. these are the three conditions when the popped out node is a solved. Its state is solved. Okay. Acha, okay. So it can be a max node, not the last child, can be a max node and the last child, or the min node. So these are the three conditions. Okay. So what do we do? If it is a max node and not the last child, you add the next child of its parent as live with the same value. That is clear? Yeah, yeah. Okay. Second condition, if it is a max node and the last child, then you update its parent as solved with the same value. That is clear? Yeah. Third condition is if it is a min node, then you update its parent with the same value and remove all other children of its parent. Okay, I'll demonstrate all these three steps, okay, in the algo. So I just wanted to make these three conditions clear. So we all are clear about these conditions. Yes, yes. Okay, so these were the conditions for the solved node. Now, if the popped out node is a live node, if it is a live node, then again there are three conditions. It can be a max node, it can be a min node, or it can be a terminal node. Terminal node means the node on the horizon. Origin. Yeah. So if it is a max node, then what do? You add all its children as live with the same value. Clear? Clear. Clear. Okay, for example, here if we come to C1 and we have popped out C1 and it is a max node, then and it is a live, condition is live, not solved. So if it is a live, then you add all both its children. If it is a min node, the node which has been popped out is live and is a min node, then you add only its leftmost child. That is clear? Yeah, that is clear. Very good.
Third condition is that if the popped out node is live and it is a terminal node, then you solve it. Solve it means it was carrying some value and now it is having some value. So you Yes, yes, solve true. that and you take that value and now you add this node as solved. Okay, in all other conditions, what we were doing, we were popping out a node and we were removing that node. This is the only condition where we are keeping this node, but we are changing its state as solved, and we have done the eval function on that. So these 6 conditions are clear: 3 for live, 3 for solved. Yeah. Clear. Good morning, all. Hi, Bimlesh. Good morning. Good Morning. morning. Sorry, I was taking shower. I just joined. Yeah. No, Can if you can quickly tell the 6 conditions, that will help. yeah. I'll So jot down. yeah. I'll cover it again. And so first we cover the conditions for live. If the popped out node is live, then it can be a max node, it can be a min node, or it can be a terminal node. Yes, If it is a pop node is live, then it can have 3 things: max, min, and terminal. yeah, But terminal again can be max or min. a terminal, yes, you're right. So that also I will cover. Okay. So if it is a max node, then you add all its children with the same value as live. Clear? Okay. For example, if we have popped out C1 and it is a live node and C1 value presently is, for example, 20. C1 live 20 we have popped out. It is a max node. So you add both its children with the same value and as live. So we will add D1 live 20, D2 Yes. live 20. Correct. Okay. If it is, now we come to the second condition. If it is a live node and it is a min node, then you add only its leftmost child as live. For example, we pop out D1 live 20. So we will add only what? A live 21. Correct. Okay. Now we come to the third condition, that if it is a terminal node. Now terminal node, you were right that it can be min node or it can be a max node. So how to solve a terminal node? So then we have to understand whether it is a max node or it is a min node. So here it carried the value initially what? A live 20. 20. That okay, that was the value. A live Now 21. Yes. So here is 21. So what max checker tries to do, always remember. So max, what it will do, it will try to maximize. Yes. So it will select now what? 21. A solved 21. Correct. Now if it would have been a min node, for example, this A was a min node, then its value would have become what? Ullas, any idea? If it is min node, then we can take its adjacent means No. Just remember, we have popped out, for example, D1 live 20. Okay. yes. It's a live node. It is a min node. So what do? You add its first child. First child as Which As will A live 21. A live A live 21. A live 20 first. Okay. Please remember. Okay. A Okay. live The 20. value copied. Okay. Okay. And then what will happen? You will pop out A live 20. Correct. A live 20. So it is a live node. 21. A live 21. It is a terminal node. Okay. So now it will solve it, and it is a max node. So what it will try to do? It will try to maximize. Yes. So it will take 21. Correct. Now, for example, below A, there was another node, for example. Correct. That would have been a min node. Yes. So if that min node had a value 5, then that min node जो eval करेगा वो छोटी वैल्यू लेगा. Correct. ठीक है, मैक्स नोड हमेशा बड़ी वैल्यू लेगा, मिन नोड हमेशा छोटी वैल्यू लेगा. दैट इज द ओनली. बट मिन नोड के पास तो एक ही वैल्यू है ना. हाँ, मिन नोड के पास फॉर एग्जांपल वहां पे भी 2 नोड्स थे फॉर एग्जांपल, है ना. ओके. ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक टेल यू द डिफरेंस की जो टर्मिनल नोड है, अगर वो मैक्स होगा तो क्या होगा और वो मिन है तो क्या होगा. इवैल बेसिस सपोज ए के नीचे, जस्ट ए के नीचे 2 ब्रांचेज हैं. ओके. हाँ जी.
और वो दो ब्रांचेज मिन नोड के हैं। एक हाँ। ए के नीचे लेफ्ट इज मिन नोड ए लेफ्ट इज 10 एंड हाँ। मिन नोड ए राइट इज 15। हाँ, तो तो फिर फिर कैसे? आपका तो वो फिर वो 10 लेगा, ठीक है दोस्त, ओके, बिकॉज वो मिन है। तो ये बारी सिस्टमेटिकली हम इसको, ए लेफ्ट 15 होता, ए राइट 10 होता फिर। तब भी वो जो बाद में जब वो सॉल्व करेगा ना, पहले तो वो 15 ही लेगा, दोनों को वो ऐड करेगा विद द सेम वैल्यू। करेक्ट। जो जो ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 21 हो गई, हाँ, तो पहले वो दोनों को ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल वहां पर आ जाएगा वो F1 एंड F2, F1 लाइव 21, F2 लाइव 21, करेक्ट ठीक है। फिर वो F1 को पॉप करेगा तो उसको सॉल्व कर देगा, F1 लाइव, F1 सॉल्व 15, करेक्ट। और फिर क्या करेगा F2 अब लाइव 15 जो है, 15 है क्या प्रायोरिटी क्यू में पीछे चली गई, अब वो फिर से क्या करेगा F2 लाइव 21 को पॉप करेगा, और F2 की वैल्यू आपने क्या बताई 10, तो उसको करेक्ट सॉल्व करके वो मिन नोड है तो वो क्या करेगा, छोटी वैल्यू रखेगा, 10 रखेगा, करेक्ट। ठीक है। सो दैट इज हाउ। फिर 10 से ऊपर ए को अपडेट कर देगा। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। सो दिस से क्या आई हैव कवर्ड क्या लाइव वाली कंडीशंस, 3 कंडीशंस। नाउ वी कम टू सॉल्व की 3 कंडीशंस। सॉल्व now क्या, pop node is solved. Okay, yeah, so it has got 3 condition. One is if it is a max node and it is the last child of its parent, first condition, ठीक है। Second condition, it is a max node and not the last child of its parent. Third condition is if it is a min node, ठीक है। 3 कंडीशन क्लियर हो गई उल्लास? हेलो उल्लास? Yes, हाँ yes, yes, yes. Clear, clear, clear. Okay, so now what do we do? 3 conditions के अब मैं actions बता देता हूँ। If it is a max node and it is the last child of its parent, वो parent की value को update करेगा और parent को दिखा देगा solved with the same value. Clear, Bimlesh? parent node update with same value. And solved in the solved condition. So अगर a suppose a right side में होता just, तो Yes, तो d solved 21 कर देते हैं। yes, ठीक है। Okay. Second condition, it is a solved node and it is a max node, but it is not the last child. So then add the next child of its parent with the same value and condition live. Next child means उसके For right hand example, side में जो है। right hand side. For example, in this case, we pop out A solved 21. Correct. So it is a solved, it is a max node, but it is not the last child of its Last child. parent. Yes. So it will add the next child with the same value and as live. So it will add B live 21. Okay. So Clear हो गया? add next child. अब हाँ, इसमें भी and- आपने कल बताया था, सपोज इनके 3 चिल्ड्रन होते हैं डी के, तो पहले एक- वो बारी बारी से करेगा, ओके एक बार में ऐड नहीं करेगा। इट ओके इज एडिंग ओनली द नेक्स्ट चाइल्ड। ओके ओके। So Now- in succession it will add both the 2 remaining childs, correct? दोनों को Suppose ऐड D, नहीं करेगा। suppose D दोनों is को- having, suppose D is having 3 max children, A, B and B1. Okay. हाँ जी, So first it will A will pop out, it will update D. Now again B will go live and B will pop out. Again B1 will go live and it will pop out like यस that. यस। तो Okay. ये वाला जो स्टेप है, अगर हम लॉजिकल देखें, इस वाले स्टेप को अगर मान लो 3 नोड है, 2 नोड है, इसको एक ही एक्शन में हम टक से कर सकते हैं, है ना। वी नो दैट बिकॉज 21 जाएगा, बी में 21 आ गया, है ना। अब Correct. हमारे पास क्या आ गया, वी हैव गॉट नाउ बी लाइव 21। ओके, Yes. नाउ व्हाट वी विल पॉप है क्या, वी विल पॉप बी B लाइव 21। उसको B solve 5 हो जाएगा। वो बी सॉल्व 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब जैसे बी 5 चला गया तो वो प्रायोरिटी क्यू में पीछे चला गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, जो C. प्रायोरिटी में C. हाईएस्ट है। So now it is C. Okay. So we pop out C15 solved. It is not the last child. So what do? We add D live 15. Then D live 15 को पॉप करेंगे
और डी को सॉल्व कर देंगे बिकॉज ये टर्मिनल नोड है. सो इट विल बिकम D2, डी, D2, सॉरी D. दिस सी, ये जो नीचे वाला डी है इसकी बात कर रहा हूँ. Okay, okay. Okay, because C was not the last child, so it will Yes. add D live 15. फिर D Correct. live 15 को पॉप करेगा तो वो देखेगा इट इज अ टर्मिनल नोड, तो उसको सॉल्व कर देगा. सो इट विल मेक D D solved solve 11. Correct. ओके, नाउ D solved 11 देखेगा वो प्रायोरिटी क्यू में अब क्या है, तो इसके पास में K है, K solved 13. Correct. K solved 13 again, it is not the last child, so it will add L live 13. L live 13 को पॉप करेगा, सॉल्व करेगा, तो इट L विल live 12. L solved 12. L solve 12, sir. Yeah. अब प्रायोरिटी क्यू में अगर आप देखोगे तो L solved 12 इज द लास्ट टिकर, सबसे बड़ी लार्ज वैल्यू है. सो इट विल पॉप नाउ L solved 12. तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर सॉल्व है, Last मैक्स child है, है. तो वो क्या करेगा, पेरेंट को अपडेट कर देगा, सॉल्व. Correct. Correct. सो इट विल बिकम D6 solved 12. Yes. Now So D solved, just to consolidate, हमारा pop node solved था और max node था, but not the leftmost child. Sorry, not the last child of parent. Then we add further childs one by one. yes, yes, Okay, and keep popping and solving. yes. Okay. Now what we will do, we will pop out of, इसकी वैल्यू 12 है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो we will pop D5 solve 12. तो मिन नोड की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर ये मिन नोड है तो वो अपने पेरेंट को अपडेट कर देगा और पेरेंट के बाकी जो सक्सेसर्स हैं उसको प्रून कर देगा. सो C3 solve 12 and it will prune this part. तो आपका जो I है वो आपके प्रायोरिटी क्यू से निकल गया, क्योंकि हमने L solve 12 को पॉप आउट किया, तो उसने हाँ. अपने पेरेंट मिन नोड को अपडेट कर दिया 12 वैल्यू से. यस, करेक्ट. अब यस, और अभी भी चूंकि ये प्रायोरिटी क्यू में सबसे ज्यादा है, तो Yes. हमने इसको फिर पॉप आउट किया और हाँ. इसके पेरेंट नोड जो कि मैक्स नोड है उसको अपडेट कर दिया. क्योंकि हाँ. मिन नोड से मैक्स नोड को अपडेट कर रहे हैं, तो मैक्स हाँ. नोड के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमने प्रून कर दिया. यस, So if pop node is the solved node and that is a minimum min node, then we update the parent node with value. yes, Parent node will definitely be max node and prune the balance branches of that node. yes, है ना. Okay. तो अगर आप एल्गोरिथम में इफेक्टिव इसका स्टेप देखोगे तो इफेक्टिव स्टेप है कि योर I solved 5 will be removed from the priority queue. Yes. That is clear. Yes. Okay. Yes. Okay. Very nice. So now who has got the largest value? C3. C3 solved 12. Now we pop out C3 solved 12. So it is a solved node. It is a max node. But what is the condition now? Is it the last child? No. So what we'll do, we will add the next child of its parent with the same value. Yes. So C3 we have popped out and we have added C4 live 12. Yes. Now we will pop out C4 live 12. So it is a max node, live node. So what do? We add both its children. Correct. So we will add D7 live 12, D8 live 12. Correct. So now we pop out D7 live 12. We have popped out. Yes. So it is a min node and it is a live node. So what do? We add only one Yep. child. Yes. So we will add M live 12. Correct. Okay. Now it is a terminal node. So what do? We update its value. So it will Yes. become M solved 13. 13. Yes. Now we will pop out M solved 13. So it is not the last child. So what he will add? He will add N live 13. Yes. Now it is a N live 13. It will solve it. Make it 14 because it is max node. Okay. यहाँ पे sorry. See, condition here was D7 था आपका, live था 12 था, and ये max node है, तो ये जब eval करेगा ना, तो ये min से आ रहा है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू रखेगा, तो ये 12 को ही रखेगा यहाँ पर. ठीक है. अपडेट नहीं करेगा. M live
ठीक है, m live 12 हो जाएगा, फिर हाँ। वो ऐड करेगा n live 12, n live 12 जब सॉल्व करेगा तो 14 is greater than 12, so he will keep 12 only, and now it will नहीं, pop out. वेट, Yeah, हमारा मिन नोड था D7 लाइव 12, करेक्ट? yeah, D7 लाइव 12 के बाद सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के चिल्ड्रन को अपडेट करेगा, M को, करेक्ट? ऐड करेगा m live M 12 लाइव initially. 12, M लाइव 12 Yes. हो गया। अब M लाइव Yeah. 12 टर्मिनल नोड हो गया, मैक्स नोड हो गया, ठीक हाँ. है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाँ. M सॉल्व 12 रहेगा या M सॉल्व 13 रहेगा? हाँ हाँ, ये 12 हो जाएगा। तो मैंने जो आपको पहले बताया था, आई हैड मेड अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब Okay. इसको सॉल्व करेगा, इसका पेरेंट नोड मिन है, तो ये हमेशा लोअर वैल्यू रखेगा, बिकॉज मिन हमेशा लोअर लेता है। ओके, तो एक इसमें अब मेन टू मैक्स आ रहा है तो कीप मेन वैल्यू। या ओके, तो यहाँ पे M सॉल्व 12 रहेगा। ओके, so now we will pop out m solve 12. So condition is what? Solved max node but not the last child. So add a next child. We will add N live 12. n live 12. Now we will pop out n live 12 and we evaluate. So minimum. again, we'll N keep the solve minimum. So we'll keep 12. Now Correct. what will happen? We will pop out n solve 12. It is Yes. the max node, last node. So update its parent value. So he will become 12. D7 solved now 12. 12. पहले वो D7 हमने लाइव किया था पहले, अब ये D7 सॉल्व हो गया। इसमें एक ही चीज निकल के आ रही है, जो मिन नोड से हम फर्दर नीचे के नोड्स को हम लोग बेसिकली पॉप आउट करके सॉल्व करने का था, तो हमने ये प्रोसेस फॉलो किया, बट अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ मिन नोड विल रिमेन द सेम। अगर नीचे की वैल्यू ज्यादा है, अगर यहाँ पे 7 होता, करेक्ट, अगर यहाँ पे 7 होता तो इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाती है? 7 अपडेट हो जाती। करेक्ट, है ना? So now these values were higher than 12. That's why he has not got updated. Yes. Now we have got D7 solved 12. So Yes. now we pop out D7 solved 12 ko. So it is a min node, solved node. So what he will do? He will update his parent and remove all the successors. Prune it. Yes. So C4 आपने किया, C4 आ गया, C4 solved 12 and इसको हमने prune कर दिया। Prune कर दिया, correct. Now what will happen? We will pop out C4 solved 12. So it is the max node and the last child. Last child. We will update the parent with the same value. B2 solved 12. Yes, B2 and will pruning to max node पे होती है। हाँ, अब क्या होगा? अब ये min node है, solved है, so क्या होगा? Update its parent with the same value and remove all the successors. Correct. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A12 solved 12 एंड ये पूरा जो सब ट्री है यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी क्यू में थे सब निकल जाएंगे। उल्लास, इज इट क्लियर है क्या? Yes. I have covered all the steps है क्या? Yes, मैंने तो जॉट डाउन कर लिया सारे कंडीशन, अब दिक्कत ही नहीं है। Okay. This was triple S star. This was triple S star. And the beginning step in triple S star is to do min max, as you said. हाँ, मिन मैक्स से आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हमने निकाल ली थी पहले से ही, तो नाउ वी नो कि हमारा आंसर करेक्ट है। मिन मैक्स से हमने निकाल ली थी, आंसर इज 12 एंड ट्रिपल एस स्टार्ट से हमारा 12 आ गया। तो वी नो कि भैया हमारे सारे स्टेप्स करेक्ट हैं। समझा नहीं है मैं, मिन मैक्स से 12 आ गए तो हम ट्रिपल एस स्टार से भी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मिन मैक्स से हमने इसलिए किया कि जस्ट टू कंफर्म कि ट्रिपल एस स्टार जो मैंने किया है वो मैंने करेक्ट किया है, नहीं किया, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। So does that mean that if it's a question of min max and we need to find the top? No. What I'm saying, if there is a question on triple S star and we are given a tree, so I will take some steps like going forward pass, backward pass, forward pass, backward pass, and then I will get some value at A, है ना? Correct. अब जस्ट मेरे को कंफर्म करने के लिए कि मैंने ये सब कुछ ठीक किया है, तो मेरे पास अगर पहले से ही मैं 1 मिनट में मिन मैक्स सॉल्व कर दूं तो मुझे पता रहेगा कि भाई मैंने जो ट्रिपल एस स्टार्ट सॉल्व किया वो ठीक से किया नहीं किया। सो दैट इज आइडिया। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था, द कंफर्मेशन इज लाइक व्हेन वी डू इट ट्रिपल स्टार और मिन मैक्स, द टॉप मोस्ट नोड वैल्यू विल रिमेन सेम। या अल्फा बीटा हो या मिन मैक्स हो या ट्रिपल एस स्टार हो, ऊपर की वैल्यू रिमेन्स द सेम, दे गिव द सेम सॉल्यूशन। All three give the same solution. All three give the same solution. Then because that is the what is the purpose of having three different?
Yeah, so I will tell you the purpose. Min max क्या करता है? Mini max में you explore all the nodes, so it is like a Brute brute. force. Yes. Okay. Then we come to alpha beta. Alpha beta एक window बना देता है alpha और beta की, and depending on the conditions, whenever alpha becomes equal to beta or greater than beta, it prunes the tree. तो उसमें pruning हो जाती है, तो आपका space search, आपका space and time complexity दोनों सेव हो जाती हैं आपकी. Correct. और ट्रिपल एस स्टार क्या है कि वो उसके आगे भी जाता है और इसमें बहुत ज्यादा प्रूनिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट क्या Space saving. सेविंग होती है वो ट्रिपल एस स्टार में होती है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम. Okay. Okay, so this was a small session on basically triple S star only, so that we don't have any doubt about this. So now that we are recording, can we quickly go over through one alpha beta example? So that will help. Okay, okay, alpha beta also I'll open. और सेम ट्री सिमिलर ट्री में अल्फा बीटा कर Yeah, we can do. So we will do on the same tree. ठीक है. So I will request all of you कि आप ट्राई करो इसमें. यस है ना. नहीं, इसके I'll tell you. कंडीशन अल्फा बीटा में कंडीशन था इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा देन वी व्हाट डू यू डू. उसका जो सब ट्री है, जो बाकी जो बचा हुआ है, उसको हम प्रून कर देंगे. So I will also सब ट्री ऑफ बीटा साइड. या सो इसी को हम सॉल्व करते हैं. हम पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे अल्फा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करते हैं. इसको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मैं करता हूँ. हाँ प्लीज करो. उल्लास आप भी ट्राई करो. अभी वैल्यूज लिखनी है कि नहीं लिखनी है? हाँ लिखो लिखो, व्हाई नॉट, वी विल सॉल्व इट. ओके, मतलब 12 लिखना है. नहीं 12 मत लिखो. 12 लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास में. द क्वेश्चन इज दैट यू गॉट ओनली द टर्मिनल नोड्स. ओके, टर्मिनल नोड की वैल्यू हमें लेनी है ना अब. हाँ, ओनली टर्मिनल की लेनी है, बाकी तो कुछ नहीं लिखना है. बाकी नाउ यू हैव टू अप्लाई अल्फा बीटा एंड फाइंड द वैल्यू एट ए. 21 और 5 लेगा तो देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये यहाँ पर आ गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. ये मिन नोड है, तो ये क्या अपडेट करता है? बीटा को अपडेट करता है. अब बीटा इसमें दोनों में छोटा कौन सा है? 5 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5. अब ये इस वैल्यू को पास कहाँ पर करेगा? मैक्स में. मैक्स क्या अपडेट करता है? अल्फा को करता है. तो 9 यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. बीटा क्या है? इन्फिनिटी. ये लास्ट जो होराइजन नोड, सॉरी होराइजन नोड्स के जो वैल्यूज हैं वो तो लिखेंगे ना. हाँ, हॉरिजॉन तो लिखना है 21 5 वगैरह लिखना है ना. ओके हाँ, चलो इसको वैसे कर लेते हैं. तो यहाँ पर 5 इन्फिनिटी आ गया उल्लास. नाउ ये 5 इन्फिनिटी ही विल पास इट टू दिस नोड 5 एंड इन्फिनिटी. तो यहाँ पर क्या अपडेट होगा? बीटा वैल्यू. बीटा वैल्यू सबसे कम क्या है? 11. तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 11. अब ये यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी? अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगी. यस, वेरी गुड. तो ये होगी 11 इन्फिनिटी. अब ये पूरा सब ट्री मेरा सॉल्व हो गया. तो ये सब ट्री अब क्या है? इसका अपडेट करेगा. यहाँ पर क्या अपडेट होता है? बीटा. तो ये 11 था, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी 11. क्लियर? यस. ओके, नाउ यहाँ पर आ गए माइनस इन्फिनिटी 11, माइनस इन्फिनिटी 11. अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेगा? बीटा को अपडेट करेगा. तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 8 इज स्मॉलर देन 11. और यहाँ पर क्या चला जाएगा? अब अल्फा क्या हो जाएगा अब हमारा? 8. तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 8 एंड 11. 8 एंड 11 को हम नीचे लेकर आए. अब यहाँ पर आपकी वैल्यू बीटा की अपडेट हो जाएगी 9. तो 8 एंड 9. तो अब अल्फा क्या हो जाएगा? 9. वेरी गुड. सो ये अब हो जाएगा 9 एंड 11. ठीक है. अब यहाँ पर हमने क्या अपडेट किया था? याद है आपको यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी हमारी? 11. और यहाँ पे अब क्या है वैल्यू? 9 एंड 11. तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 9. हाँ, अल्फा की वैल्यू 9. अभी यहाँ पे हमारी मैक्स लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं ना. तो नहीं बिट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या ओवरऑल मतलब टोटल 9 वैल्यू आ जाएगी इस नोड में. ओके, सो ये 9 है और यहाँ पर क्या है? 11 है. नहीं, मिनिमम में अपने बेसिकली बीटा लेते हैं.
ओके, आप क्या मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक पेज लेके ना इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने इसको नोट डाउन कर लिया इस डायग्राम को, और हाँ, इस डायग्राम में सिर्फ लास्ट वाले जो नोट्स हैं 21.5 जो वैल्यूज हैं वो लिख दिया है, बाकी सारे नोड ब्लैंक्स हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप इज जो टॉप मोस्ट नोड है उसको हाँ। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अपडेट कर दिया। वेरी गुड। अब लेफ्ट ब्रांच से जाते जा रहे हैं, तो लेफ्ट मिन नोड को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किया, फिर लेफ्ट उसके नीचे मैक्स नोड को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किया, फिर उसके लेफ्ट नीचे मिन नोड को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किया, उसके नीचे 21 और 5, चूंकि मिन नोड से है तो हमें 5 लेना चाहिए, अपडेट करेंगे प्लस हाँ। इन्फिनिटी को 5 से, तो मैंने प्लस बीटा को तो मेन नोड पे हमेशा बीटा अपडेट होता है और मैक्स हाँ। नोड पे अल्फा अपडेट होता है। करेक्ट, तो मिन नोड पे मतलब 21 और 5 में से मिन 5 है तो हमने 5 ले लिया, यस। वो 5 मैंने लिख दिया। करेक्ट, हाँ, तो T1 यहाँ is पर 5 क्या हो now। जाएगा, नहीं, ये सॉरी, ये जो 5 आप लिख रहे हैं ना, ये मिन मैक्स का सॉल्यूशन था, ये अल्फा बीटा का नहीं है। अल्फा बीटा में हम क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो करेक्ट, हम बीटा को अपडेट करते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। प्लस तो यहाँ पर हो इन्फिनिटी को जाएगा काट के मैंने 5 लिख दिया, प्लस इन्फिनिटी की जगह 5 लिख दिया, यस, तो यहाँ और पर मिन माइनस इन्फिनिटी 5 था। अब ये जब हम माइनस ऊपर इन्फिनिटी जाएंगे, 5 आ गया। करेक्ट, अब इसके अब ऊपर ये जब हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो मैक्स की वैल्यू क्या होती है, अल्फा अपडेट होती है। एक अल्फा सेकंड, क्या तो फिर लेता हमें है, उसके राइट हैंड साइड वाले को अपडेट करेंगे तो 50 माइनस इन्फिनिटी 11 नहीं हो नहीं, जाएगा ये। सी राइट तो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है ना दोस्त। नहीं, पहले बट आप उसको इस अपडेट करेंगे ना। अपडेट है क्या, ऊपर से अपडेट होगा ना, यहाँ पे C1 से, तो पहले आप C1 को अपडेट करेंगे। अच्छा, ओके, तो C1 में क्या हो मैक्स जाएगा, मैक्स है अल्फा 5 एंड इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 5 पहले देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था, प्लस इन्फिनिटी जब था, जब और प्लस इन्फिनिटी था। अब हमारे पास यह क्या हो गया, माइनस माइनस इन्फिनिटी एंड 5। तो मैक्स क्या मैक्सिमम इज करता है, 5, हाँ, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 5 एंड इन्फिनिटी। 5 एंड अब प्लस इन्फिनिटी हो गया। करेक्ट, यस, यहाँ पर आए हम, 5 एंड इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी नहीं, बीटा ये अपना, 5 और इन्फिनिटी जो था वो नीचे राइट हैंड साइड के नोड को हमने सेम कॉपी कर लिया 5 इन्फिनिटी से। यस। नाउ यहाँ ओके, पर बीटा क्या करेगा, बीटा अपने को अपडेट करेगा। बीटा की वैल्यू पहली स्टेप में 15 हो 11, जाएगी, सेकंड स्टेप में 11 हो जाएगी। तो करेक्ट, यहाँ पर क्या हो गया, 5 एंड 11। अब जब करेक्ट, ऊपर जाएंगे, ऊपर है क्या, अब मैक्सिमम ले मैक्स लेगा मैक्स अपना अल्फा क्या ले लेगा, 11। तो यहाँ पर अब 11, वैल्यू क्या होगी, 5 11 काट के एंड 11 कर यस, दिया। तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या होगी, 11 एंड इन्फिनिटी। ये करेक्ट, पूरा सॉल्व हो गया। तो अब B1 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारी 11। मिनिमम और इज यहाँ 11, तो माइनस इन्फिनिटी 11 हो गई। यस, वेरी गुड, माइनस अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 11 11 को हमने नीचे कॉपी किया। यहाँ पर लेकर आएंगे अब हम। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी 11, 11 माइनस इन्फिनिटी 11। अब यहाँ पे करेक्ट, बीटा 8 है सबसे छोटा, 8 तो यहाँ पर हो 8 जाएगा 12 और माइनस 8, इन्फिनिटी 8। करेक्ट, 11 काट के और 8 कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एंड 11, 8 एंड है ना। 8 11 में ये 11 रह जाएगा क्योंकि मैक्स है। हाँ, तो 8 11 को हम अब नीचे लेकर आएंगे, है ना। 9 नहीं, सॉरी नहीं, 9 से वैल्यू अपडेट हो जाएगी 8 ना। माइनस इन्फिनिटी को काट के 8 कर दिया हमने, तो 8 11 हाँ, हो गया। 8 11 हाँ, को हम 8 11 यहाँ कॉपी कर दिया नीचे। हाँ। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 11 से क्या हो जाएगी अब हमारी, 9 9। 9 और तो यहाँ पर 13, अब क्या है, 8 है और 9 है। तो 8 मैक्स की 11 वैल्यू क्या करके हो 9 जाएगी, कर दिया। मैक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 8 है और 9 है, और 9 हो जाएगी। 9। वेरी गुड, तो ये अब हो गई 9 एंड 11, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हमारी पहले वैल्यू क्या थी, माइनस इन्फिनिटी 11 थी। और ये मैक्स से क्या जा रहा है, 11 आ मैक्स, गया। और यहाँ पे 11 है, तो मिन क्या अभी करते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया कहाँ पर, ऊपर में। ऊपर में हमारी जो सॉरी वैल्यू सॉरी, थी, अल्फा इक्वल टू अभी बीटा 3 होगा। नहीं होगा, है ना। वेट यहाँ वेट, पे तो यहाँ पे तो बीटा अपडेट करेंगे ना हम। करेक्ट, मीन माइनस इन्फिनिटी 9 हो जाएगा। हाँ, 9 आ गया यहाँ पर। करेक्ट, और इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अल्फा की वैल्यू 9 हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 9 कर दिया हमने। हाँ, तो ये हो जाएगी 9 एंड इन्फिनिटी। 9 अब इस प्लस 9 इन्फिनिटी को हम नीचे लेकर आए, 9 नीचे इन्फिनिटी, कॉपी, 9 इन्फिनिटी, 9 इन्फिनिटी। नहीं, यहाँ 9 पर भी इन्फिनिटी इसकी को, एक से 9 इन्फिनिटी को हम लोग नीचे लेके आए, फिर उसके लेफ्ट में नीचे गए, हाँ, मतलब सभी जगह लिखते चले गए प्लस इन्फिनिटी, फिर उसके लेफ्ट में नीचे गए 9 इन्फिनिटी, हाँ, और 9 इन्फिनिटी में मिन है 5, हमने इन्फिनिटी को 5 से अपडेट कर दिया। हाँ, वेरी गुड। लेकिन यहाँ अब पे अब क्या 9 ही रहेगा, बिकॉज 5 तो छोटा है 9 से, सो इट विल रिमेन 9 इन्फिनिटी।
Correct. So 9 infinity it will remain as it is. अब यहाँ पे फिर से लेकर आ गए, अब यहाँ पे 9 इन्फिनिटी पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। 13 12 है, इन्फिनिटी होगी 12, इन्फिनिटी काट के हाँ। 12 कर दिया। अब ये 12 जो है 9 अब काट यहाँ के पे 12 हो जाएगा वेरी गुड, तो ये हो गया 12 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब हम्म, अब ऊपर ये जाएगा अब ये पूरा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 9 एंड 12। 9 एंड 12। ऊपर से हम पहले क्या लेकर आए थे, पहले इसकी एक वैल्यू थी 9 ना यहाँ पर। 9 इन्फिनिटी थी, हाँ अब उसके जस्ट नीचे हो गई है 12 इन्फिनिटी। हाँ, तो यहाँ पे तो- वैल्यू आ जाएगी 9 12। 9 12 करेक्ट। अब यहाँ 9 12 लेकर आए, 9 12 लेकर आए ना, यहाँ पे 12 है तो ये अब अपडेट नहीं करेगा इसको, 9 12 9 12 13 14 है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। है ना। अब जब ये ऊपर लेके जाएगा तो इसकी वैल्यू, अब ये क्या है 9 12, अब जब Max. ऊपर जाएंगे तो क्या वैल्यू 12 हो जाएगी 12 अल्फा 12 की, 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये प्रूनिंग हो जाएगी इसकी, तो उसके राइट हैंड साइड वाली काट दिया हमने। प्रूनिंग हो जाएगी, और ये 12 12 12 12 ऊपर जाके आंसर 12 हो जाएगा। 12 12 ऊपर चला गया, फिर 12 12 हो गया, नहीं तो ऊपर फिर 12 12 हो गया, तो बीटा 12 ही था, कुछ अपडेट नहीं हुआ। और 9 एंड 12 में मैक्सिमम 12 है, तो हमने ऊपर 9 काट के 12 कर दिया। हाँ। ऊपर में वैल्यू रहेगी 12 इन्फिनिटी, हाँ, तो इन्फिनिटी का क्या करेंगे? 12 12 है, अगर 12 12 ही आता है। अब देखिए यहाँ पे 9 12 था, यहाँ पर 9 हाँ। 12 था ना हमारा, 9 हाँ। 12 से यहाँ पर आए थे, ये हमने प्रूव कर दिया था, और यहाँ हाँ। पे क्या हो गया था 12 12। अब जब Correct. 12 12 12 12 यहाँ पर क्या था 9 12, हाँ, तो यहाँ पे अब फिर से क्या हो जाएगा आपका 9 12, है ना। 9 12 करेक्ट, 9 12 रह गया। मिन ले रहा है, अब मैक्स अपनी क्या लेता है, इसकी वैल्यू लेता है 9 Max- 12, तो अपडेट किसको करेंगे? तो 12 12 हो जाएगा ना ये हमारा। नहीं, 12 इन्फिनिटी से हम लोग नीचे आ रहे थे ना। हाँ, 12 इन्फिनिटी से नहीं आए थे हम, यहाँ पे तो 12 की वैल्यू नहीं आई थी यहाँ पर पहले, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग थी। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे हमारी कुछ 9 की वैल्यू थी, 9 एंड के इन्फिनिटी टाइप। यहाँ पर हमें इस वाले पार्ट से 9 मिला था, और 9 हाँ। इन्फिनिटी से चालू किया था, ठीक 9 है। इन्फिनिटी से यहाँ पर आके ये यहाँ पर आके 5 हुआ था, इसमें तो अपडेट हुआ था। 9 इन्फिनिटी से भी चालू किया था हमने सपोज, हाँ तो हम तो जब हमारी उसके जस्ट नीचे वाली नोड की वैल्यू 9 12 आ गई, हाँ, तो तो ये 12 9 इन्फिनिटी को हम कैसे अपडेट कर रहे हैं? हाँ, तो सुनिए ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 9 इन्फिनिटी आए, यहाँ पे 5 था, तो ये हमने अपडेट नहीं किया, 9 इन्फिनिटी रहा, 9 बिल्कुल। इन्फिनिटी ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू 12 इन्फिनिटी होगी। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नीचे भी आएंगे ना, हाँ, यहाँ पर आके हो गया था 9 12। यस, नाउ इसकी हमने 12 की वैल्यू मैक्स की यहाँ पे अल्फा की अपडेट कर दी, तो ये बन गया था 12 इन्फिनिटी, और करेक्ट, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी, अब क्या 12 हो जाएगी। करेक्ट, तो 9 12 हो गया वो। 9 12 से यहाँ पर हम आए, इसको हमने अपडेट नहीं किया, तो अब क्या, जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और ये हमने प्रूव कर दिया। 12 इक्वल टू 12 क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे हम जब नीचे आए तो 9 हाँ, 9 12 12 से हमने 12 ले लिया, करेक्ट, 12 12 हो गया। यस, 12 12 हो गया, तो ये प्रूनिंग हो गई। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 9 है, 9 12 और यहाँ पे वैल्यू 12 है, तो ये Correct. बीटा अपडेट करेगा मिनिमम ऑफ 12 12 12, तो ये 12 ही रहेगा, तो करेक्ट, ये हो गया 9 और ये हो 12. गया 12। करेक्ट, अब अल्फा क्या करेगा, अल्फा अपना अपडेट करेगा इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, यस, 12, 9 और 12, तो इसकी वैल्यू हो गई अपनी 12, करेक्ट, और ये ही आंसर आ गया आपका। बट उसके हाँ 12 तो हो गया, दैट इज माइनस हाँ। इन्फिनिटी से वो 12 अपडेट हो गया, बट हमने स्टार्टिंग में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किया था, तो हाँ, प्लस हाँ। इन्फिनिटी एज इट इज रह जाएगा, वो मैं बोल रहा था। प्लस इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, तो 12 आंसर आपका आ जाता है यहाँ पर। तो प्लस इन्फिनिटी का क्या? हाँ, टॉप मोस्ट नोड में जब हमने इनिशियलाइज किया था माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से, करेक्ट। हाँ, हाँ, अब माइनस इन्फिनिटी को तो हमने 12 अपडेट कर दिया फाइनली। चलो उसके लिए जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल फाइंड द आंसर। हाय गरिमा, गुड मॉर्निंग, वेलकम। Hello, I'm so sorry. I just saw the message. Yeah, it's being recorded. Yeah. No problem at all. So we had cut this small session to clarify any small doubt about triple S star. Yeah. So if you have any doubt, okay, we can discuss that.
No, I was also thinking like planning problems. Just can we go through that as well? Like complete हो जाएगा फिर एक बार Uh, just the concept of uh, it. I think planning problem will take some time. Okay, okay. So we finish this, okay, and what I will do, if everybody is through with triple S star and this alpha beta, Bimlesh, okay, this answer I will try to get and I'll post in the group. है ना? It is a, Sure, sure. Sure, thank you. yeah. Yeah, So because I need to practice triple S star. yeah, I did the alpha beta pruning. I was practicing that. I have to Triple practice star, triple S star. he Yeah. he held with 6 conditions. I've jotted down. I'll Hmm. try and share. Please send that conditions in group. All right, all right. yeah. So then okay, we'll call it off. The planning one, I think tomorrow evening I will be comfortable. All Tomorrow right, evening we okay. can discuss. Okay. Tomorrow All right, evening that around what sounds. time? Yeah, Bimlesh. Around what time tomorrow evening? Tomorrow evening around 6 p.m. or 7 p.m. Hmm. 6 to 6, 7. Okay. Yeah. So we'll go through all the planning problems Yeah, give me 2 because for minutes. one session, na, Garima, it becomes slightly heavy. Yeah, true You know, that. What is there in yeah. Agree. planning problem? Planning problem में इनका Relevant actions वगैरह. yeah, Like yeah, we need to they got understand the main. they got FSSP, they got Hmm. BSSP, they got GSP, and they got PSP. So all the four I will That cover one week by one. that we did that day, that Hmm. robot arm wala. Hmm. Yeah, Yeah. same. But paper wise, previous year paper का revision उसमें. हाँ. So that So we know. tomorrow what we Yeah. will do, Garima, we will take out the quiz paper and we will solve the question. Hmm. All right. That sounds wonderful. Cool This then. the branch चलो, and okay. All this right. Take this week care. Thank you, sir. week 5 Thank wala, you, lecture. Lalit ji, हाँ जी. this week 5 wala, that A star and branch and bound whatever, हाँ. वो कभी एक छोटा सा सेशन जब आपको लगे. हाँ, डेफिनेटली. उसमें मैं आपको एक I'll just give you one suggestion. जो A star तो you know is very very easy. If you will go Okay. through the algo, A star is super easy. Okay. जो रिकॉर्डिंग branch and आप बंद कर दो अभी. okay, yeah, I will do that. Okay.